Yes, ma'am. Yes, Perfect. ma'am. Right. First of all, Ayat, wonderful giving the introduction. I really loved. Guys, I would really appreciate you. आप लोग अपने cameras बंद रखो अगर थोड़ा सा conscious हो रहा in the first class. But I would really say if you can let me know आपका थोड़ा सा background, थोड़ा सा how are you into marketing and what are your expectations? मैं आपको कैसे help कर सकती हूँ? तो वो throughout the course मुझे काफी help करेगा. Can we please do that? Yeah, sure, ma'am. थैंक यू। मैं एक एक का नाम बुलाऊं या आप लोग खुद से बोलेंगे? मैम ओके जैसे आप कंफर्टेबल हो। ओके थैंक्स आयत। आई स्टार्ट विद शीजा। शीजा, कैन यू प्लीज गो अहेड? Sure, ma'am. Ma'am, I'm Shija Bhaskaran. Basically, I am in Kerala at present. I have done my MBA in digital marketing, and it's Okay. actually a career switch for me because I have experience of almost 10 plus years in healthcare industry. So currently, I'm working as a proofer in one of the healthcare industry, like healthcare sector. And like I was interested in doing my MBA, and when I just did some research, I realized that this industry, that is digital marketing, it has a lot of opportunities. So basically what I'm looking is I have the theoretical knowledge, SEO, SEM, all those theoretical things I have learned for 2 years in my MBA degree. And now I want a hands-on experience, the practical knowledge, how to implement what we have learned. So that's what I'm expecting from this particular internship. I did it from Jain University, and just now we completed our post graduation last month. Fair enough. Okay. Thank you so much, Ija. Next, we'll go with Arijit. Hello, ma'am. Hi. My name is Arijit Shah. I am from West Bengal. I am currently studying BSc Botany Honors, second year student, and also I study digital marketing course. And I am currently just job. I want to. Hello. If you're comfortable in Hindi, तो हिंदी में बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Actually, मैम मैं मेरा जो करियर है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करना चाहता हूँ। That's why मैं ये करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। Okay. Okay. Fine. Next we'll go ahead with Abhishek Srivastav. Good evening. This side is Abhishek Shrivastava. I am from Kanpur, UP, and I have done my Bachelor of Art, and after that I did 1 year diploma in hotel management. And I was also working in the hotel field, but after the COVID-19, everyone dropped their job, and I was the part of that. During that period, I have heard through the internet about the digital marketing. I joined short-term course from other coaching institutions, but the good thing is that they provide me the job placement suddenly at the mid of course. So at the initiation, I was enjoying it, but after 2 years, I was realizing the company taking me work as a MTS. Sometimes they tell me to write down the content. Sometimes they tell me to making backlinks and social media marketing. Sometimes, but after that, I realized I do not have any particular deep knowledge in the particular field. So I'm here to take the deep knowledge on the particular process like SEO, SMO. Yeah. That's all Okay. from me. So I should understand that you have a basic knowledge of things, right? Yes. Fair enough. Okay. Thanks. Let's go with Rashi now. Hi, ma'am. Good evening. I'm basically a doctor. I'm gynecologist. I'm just interested in graphic designing and latest video editing AI tools. Oh, that's great. That's lovely. Nice. Okay. And then we have Vishal. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, I am from Delhi, Sangam, Bihar. I was currently studying BBA second year.
someone tell me about digital marketing, so I search in Google. So it is very interesting about it. It is very helpful to expand our business and help to create a business in wide large areas to expand and tell about something people should. Okay. Okay. Thanks, Vishal. Next is Krunal. Krunal, can you hear me? Ma'am, Pranal has posted in the chat that she is working, so she won't be able to speak. Yeah. Okay. Okay. Great, great. Okay, no problem. Pawan, are you there? I'm not sure. And then somebody with the name user, yaar, please अपना नाम बता दो at least, so we know what to call you. Yeah, the person with the name of user, it's a Kobirul Islam. Okay, so Kobirul, अगली बार से जब आप सेशन में आएंगे आप उसको रीनेम कर लेना. चलो मैं ही आपको रीनेम कर देता हूँ. अनम्यूट करो और मैम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही, आप उनका रिप्लाई कर सकते हो. Thanks. I think there would be some problems, so that's okay. Neha, are you there? Yes, ma'am. Good evening. Mm-hmm. I am from Jamshedpur, Jharkhand, Okay. and I have done graduation in commerce, and Okay. from last 10 years, I am working in accounts field only. Mm-hmm. So my son is doing digital marketing from NIHT Kolkata. Okay. He pushed me in this career. That's so nice. That's I so was nice. insisting him to do CA. No, you do CA. So he Mhm. told me, I don't want 9 to 5 job like you. दिन भर आप कंप्यूटर में टिक टाक करते रहते हो. हमको वो सब नहीं करना है मम्मी, हमको डिजिटल मार्केटिंग करना है. So after 12th, he is doing digital marketing from NIHT. And Mm-hmm. from last 6 months, he is only pushing me, no, you join somewhere, you do it. It is best you can do. So I have joined this class. That's great, I would say. I hope I am able to fulfill your son's expectations, and we really do good. Sure, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Anytime. Next, we have just last two people left, guys. We have Vaibhav. Can you please quickly introduce yourself? Yes, ma'am. My name is Vaibhav, and ma'am, actually, I have a 8 year experience in retail. So I'm working as a retail and a soft skill trainer for last 8 years. But due to my family condition, my company called me to join uh, offline, but I cannot move. So I searching job for digital marketing. I want to make career in digital marketing, ma'am. That's why reason I uh, join to digital marketing, ma'am. No problem. Okay, great. Last but not the least, obviously, we have Divyanshu. Can you please let us know? Yes, I'm Divyanshu, I think your voice is not really proper. दूसरे लोगों को सुनाई दे रहा है क्या properly? No, ma'am. No, ma'am. Here. No, ma'am. Divyanshu, we are really not able to hear you. I'm so sorry. I think that's okay, Divyanshu. Just put your introduction chat box में and we'll take it from there. Okay, so guys, we'll start with the main lecture now. First and foremost, I would really like कि अगर सब लोग बहुत actively participate करें and whatever doubts you have, 10 बार भी पूछना है, no problem, but please
don't go without solving your doubts. I would really say this to everybody. That's okay. You want to put it in the group. You want आपको नहीं पूछना है, chat में पूछना है. Howsoever you want to do it, I'm fine. Just please don't let your day end with a doubt. That's all what I want. ये एक्टिविटी हमने इसलिए करी थी so that आप लोग एक दूसरे से बात कर पाओ and थोड़ा सा हम लोग comfortable हो पाए and then we can start. Okay, Divyanshu, thank you for your introduction and we shall start now. So if I were to ask you कि आपके लिए digital marketing का definition क्या है, right? So who can let me know? Guys, please, you can choose the option of raise hands and I'll choose anybody of you. Anybody else than Ayat जो बोलना चाहता है कि digital marketing क्या है? Okay, okay, Ayat, you can continue. So basically, ma'am, it's a platform where we promote or sell our goods and services digitally. Mm-hmm. That is what I know about the basics of digital marketing. And you isme, like, as we have seen already in marketing, there are certain stages like awareness, consideration, वगैरह, how we are promoting our product through social media by using different apps, or we are creating like different websites so that your product or services can be out there in the market and people can get to know about your product or services. That is the basic crux I know, ma'am, not in depth. Okay, fair enough. Sheija, I think आपने हाथ खड़ा किया था. Yes, ma'am. Basically, it's the same जो आयत ने बोला है वही है. Digital marketing in the sense we are promoting or making people aware about our product or service through online. Now, the traditional form में क्या होता था? We had this door-to-door marketing. So that has changed now. The concept has switched to digital marketing, wherein because most of the people, they have mobile phones, access to internet. So when we promote a product on on the digital platform, it has a wide reach. Now, sitting at a particular city, now, as I mentioned, I'm in Kerala. If I promote a product, maybe a person in US can also get to know that I have something to offer to him. So that's the reach of digital world. Mm-hmm. Okay, that's correct. Anybody else? Okay, guys. I'll give you an overview. So we'll start the course with studying कि digital marketing क्या होती है, कैसे होती है, and how do we go ahead. तो basically सबने देखा होगा कि we have traditional marketing. सबके घर में वो pamphlets तो आते ही होंगे, right? Yeah, ma'am. ओके Yeah, सो वो जो पैम्पलेट्स जो आते थे, राइट, पैम्पलेट्स आते थे बहुत बार. जब आप कहीं बाहर जाते हो तो होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, वो देखे वो बड़े बड़े बैनर्स जो रोड पे yes, लगे ma'am, होते हैं, yes. करेक्ट. सो Yeah. उसको हम बोलते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसा होता था, बिकॉज सी ये बात आई थिंक सबको पता है कि अभी लास्ट 4-5 ईयर्स से पहले सोशल मीडिया इतना हम लोग यूज नहीं कर रहे थे जितना आज कर रहे हैं, राइट. सो इसके लिए जो भी मार्केटिंग थी दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफलाइन. या कभी somebody told you एक डॉक्टर के पास जाने के लिए एंड यू डिडंट सर्च ऑन गूगल ना कि उनके रिव्यूज कितने हैं, उनका टाइमिंग क्या है, करेक्ट. आपने उनको कॉल किया, पूछा एंड गए. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग जहाँ पे आप पैम्पलेट देख रहे हो, माउथ टू माउथ कर रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, राइट. बट व्हेन वी कम टू डिजिटल मार्केटिंग द वर्ड इटसेल्फ डिजिटल सेज कि इट्स ऑल डिजिटलाइज्ड. वो पेपर पे नहीं है. It's not on anything. It's not on a notebook. It's all in your phone, right? So digital marketing के लिए बहुत सारे platforms हैं. Facebook है, Instagram है, we have LinkedIn, we have Twitter. Okay. How many of you are on Instagram currently? किस के पास Instagram का account है? Ma'am, yes, we have. I feel everyone Everybody has. has it? Yes. Perfect. Now, Yes, ma'am. सबने ads देखे होंगे? Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am.
नाउ व्हाट आर दीज एड्स? कभी ये देखा है कि ये एड हमको क्यों शो हुआ? कभी किसी ने सोचने की कोशिश करी है? बिकॉज दे आर मैम प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, हमें लाइक वो अचानक से फीड पे आ जाता है व्हाइल वी आर स्क्रोलिंग वगैरह। एक बार पोस्ट द लेक्चर, आज एक बार ट्राई करना कि आप शूज के लिए ना सर्च करो गूगल पे दैट यू आर लुकिंग फॉर शूज, ओके एंड यू विल सी टुमारो कि आपके इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ शूज ही शूज के एड्स हैं. ओके Yes, Okay? ma'am. Our interest, ma'am. Correct. Absolutely right. So this is what is digital marketing, कि आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक तो पहला कि वो आपका सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है, बट एडिशनली डिजिटल मार्केटिंग उसको भी कहते हैं जब आपका इंटरेस्ट को कैप्चर करके आपको एड्स दिखाई जाए. इज इट मेकिंग सेंस? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? नो मैम. किसी को भी कुछ भी है प्लीज पूछ लो, मैं नहीं बोलूंगी किसी को कुछ भी. प्लीज आस्क. या जस्ट अगर किसी को कोई डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क. मैम विल हियर टू आंसर एंड क्लियर ऑल द डाउट्स. मैम एक चीज पूछना था. गो अहेड. मैम जैसे आपने बोला कि हम गूगल में सर्च करते हैं तो वो इंस्टा में शो करता है यस. वो एड, तो वो इसलिए होता है कि दोनों की मेल आईडी सेम रहती है? नोप 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 नोप. No, no, So no. correct. I can explain. Anybody has any answer to this question? Yes, I have. Go ahead, बताओ. वो एक्चुअल में मुझे ऐसा जैसे मैंने पढ़ा है उसमें कि वो वेबसाइट में एक ऑप्शन आता है, फेसबुक पिक्सल का कोड लगा देते हैं, उससे अटैच्ड हो जाता है, तो वो पूरा डेटा उधर कैप्चर कर देता है, एज ऐड दिखाता है यूजर को जो वेबसाइट पे होता है उस. हेलो. करेक्ट करेक्ट, या यू आर सेइंग राइट, बोलते जाओ. यस. तो मतलब कि गूगल फेसबुक पिक्सल का कोड इसलिए वर्क करता है कि जो मतलब कि जो हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है उसको फेसबुक पे एज अ यूजर ऐड दिखाएंगे, तो वो इसलिए. बाकी आप explain. ओके. सो अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली ये कोर्स में आगे आएगा. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट दिस इन योर हेड बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी सर्च कर रहे हो और उसका एड देख रहे हो तो आपको दिमाग में आना चाहिए व्हाई दिस इज हैपनिंग, सो दैट व्हेन वी आर लर्निंग आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, राइट? To answer your question, Shija, why this happens is because again, as अभिषेक ने बोला कि फेसबुक पिक्सल होता है बट उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं. तो सी, जो पहले वाली ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, सबसे पहले तो समझो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिफरेंस डिजिटल मार्केटिंग के बीच में. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसा था, आपने बस न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डलवा दिए, वो किसी को भी जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग एंड nobody is concerned about it. वो किसी ने देखा जो आपके उसका है, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, doesn't matters. But digital marketing is टारगेटेड. अगर आपको शूज चाहिए तो वो आपको ही शूज दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल शीजा नीड्स शूज, तो वो शीजा को ही शूज दिखाएगा, अभिषेक को नहीं दिखाएगा. गाइस, इज इट मेकिंग सेंस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Okay. So now the thing is, the first thing that we have to understand is the definition of digital marketing, which says a marketing that is done completely on your mobile phones, completely on your laptop, is completely online. Okay. But is very much targeted. That is digital marketing. किसी को कोई doubt? See, I'm asking again Ma'am. because I really don't want No, anybody ma'am. go home with a doubt. नो मैम, इट्स क्लियर. ओके, क्लियर तो ठीक है, लेकिन मैं अगली बार पूछूं तो याद होना चाहिए, ठीक है? जस्ट टेलिंग. ओके, fair enough. Okay, now digital marketing के there are a lot of sections, lot of sections. Okay, so digital marketing के there are a lot of sections. Digital marketing social media पे भी हो सकती है, digital marketing Google My Business पे भी हो सकती है, digital marketing वेबसाइट से भी हो सकती है. It can be done through various things.
Okay. So number one, what we are going to see is कि how it is, जैसे हमने अभी definition देखी कि what is digital marketing. Ahead to that, we would be seeing कि what is a website, how do you go ahead with SEO, क्या होता है, क्या नहीं होता है, and everything. Today, we'll just focus on digital marketing. Okay. Up, give me examples of some popular brands जिनका social media बहुत अच्छा है या जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है. Boat, सॉरी, आवाज नहीं आई, क्या बोला? ma'am, boat. ओके, एंड व्हाई वुड यू से बोट? रीजन भी बताना. हाँ, व्हाई डू यू लाइक देम? नहीं, रीजन नहीं बताना तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सब चुप तो मत हो यार. Ma'am, Ma'am, reason क्या मतलब? रीजन मतलब कि बोट का आपने क्या देखा? सोशल मीडिया देखा? वो मैम आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट का तरीका और जो मैम उनकी वेबसाइट है वो अच्छी. ओके, उनके एडवर्टाइजमेंट का तरीका क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे टाइप के वीडियोस बनाते हैं वो, जिसमें ये अपने जेनजी वाले लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, यस, राइट? और उनका टारगेट ऑडियंस कौन है? जेन जी. 18 से 30. एग्जैक्टली, करेक्ट. तो नाउ यू सी कि कैसे टारगेट हो रहा है. यस मैम. इज इट मेकिंग सेंस? yes, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज. Ma'am, there was a brand जो even Shark Tank पे भी आया था. They were also targeting Gen Z. They used to make jewelry out of diamonds वगैरह. उनका सोशल मीडिया बहुत ये हो गया था. दे लाइक उनको पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली थी. उन लोगों ने सेलिब्रिटीज वगैरह को उसमें फिर इंट्रोड्यूस किया, लाइक फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स वगैरह. वो सोशल मीडिया पे आ रहे थे उनके साथ. लेटर ऑन वो फिर जब शार्क टैंक पे भी आ गए उसके बाद भी उनको बहुत वो मिला. कुछ जी से नाम था उनका. आई गाइस, डोंट. किसी को या, पता है ब्रांड के बारे में? देयर वाज I वन. have seen, but I am unable to recall. I have seen. She's It's saying from right. Z. It's a jewelry brand. Okay. So assignment for you, Ayat, specifically is कि and Abhishek, if you know this brand, कि you will have to find out about this brand and tell us in the next class. Yeah, और किसी sure. और को मिले तो you guys can also find. Okay. Do we have any other examples? Rashi, you had given some example. Okay. Rashi says Amazon. Okay. Anybody else? Ma'am, Spotify, Okay. live music streaming. करेक्ट. स्पॉटिफाई का आप क्यों बता रहे हो? क्या देखा है आपने? कौन सा ऐड देखा है स्पॉटिफाई का? मैम, ऑनलाइन में देखा है काफी सारा. लाइक अभी वो जेनजी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. द सब्सक्रिप्शन बेस्ड था स्पॉटिफाई का. एक न्यू कॉन्सेप्ट था. बिकॉज बिफोर दैट ऐसा कुछ निकला नहीं जहाँ पे आप लाइक इनिशियली हम वो कैसेट सीडीज वैसे सब बाई करते. अभी स्पॉटिफाई में क्या हुआ, दे स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन बेस्ड. वी हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन एंड we have a vast library through which we can listen to whichever music we are interested in. हर टाइप का म्यूजिक आपको मिलेगा. और वो जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी गाइस, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? शी इज Yes, ma'am. समथिंग वेरी Yes, इंपॉर्टेंट. यस मैम. Yes, ma'am. गुड. शीजा, जो गो अहेड. हाँ. सो मैम, ये अभी सब्सक्रिप्शन वाला था. अभी तक लाइक हॉटस्टार सब में देखा था, लेकिन म्यूजिक में इस टाइप का कभी आया नहीं. तो स्पॉटिफाई ने ये मार्केट को रियलाइज किया एंड दे केम अप विद समथिंग एंटायरली डिफरेंट. कि जहाँ पे आप जस्ट सब्सक्रिप्शन पे करो, मंथली ईयरली जो भी है आप पे करो, एंड आपकी पसंद का जो भी म्यूजिक है आप कहीं पर अभी नेटवर्क सब इतना फास्ट है तो आप कहीं पर भी आप गाने सुन सकते हो. तो वो भी काफी पॉपुलर. अभी टीवी में भी रिसेंटली स्पॉटिफाई के एक एडवर्टाइजमेंट देखा था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या था, लेकिन स्पॉटिफाई के एक एड रिसेंटली मैंने देखा था. एंड ऑनलाइन में भी काफी एड्स है स्पॉटिफाई के. ओके. डू यू रिमेम्बर किसी को भी कोई भी एक अभी रिसेंटली ऑफर याद है जो आया था स्पॉटिफाई का? एक कांस्टेंट ऑफर है जो वो लोग निकालते हैं, किसी को याद है? मैम स्टूडेंट्स के लिए. ओके, यस. कुकू FM का याद है.
ध्रुव राठी 49 की बात नहीं कर रहे अभी हम ना, ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहे अभी हम, स्पॉटिफाई की बात कर रहे हैं, बट ओके। ओके, सो इफ यू एनी ऑफ यू रिमेम्बर, स्पॉटिफाई अपना एक कांस्टेंट ऑफर रखता है एवरी 6 मंथ्स और सो में कि 119 में जो उसका 1 मंथ का प्राइस है उसमें वो 3 महीने देता है। हैज एनीबडी सीन दिस ऑफर? नो मैम, मैं सच नहीं। ओके, फेयर इनफ। इतना ऐसा बन- सो शीजा ने बात करी स्पॉटिफाई की। स्पॉटिफाई की कॉम्पिटिटर्स आप लोग किसको बताओगे? व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स एग्जैक्टली? किसी को पता है क्या होते हैं पिंक कॉम्पिटिटर्स? म्यूजिक, हाँ। yes Yes, ma'am. पिंक म्यूजिक, सावन, परफेक्ट। जियो सावन। सावन ओके, पहले मुझे कोई भी एक जना फटाफट से कॉम्पिटिटर्स की डेफिनेशन बताओ। मैम, जो आपके लाइक दे आर इन द सेम लाइक प्रोडक्ट्स और सर्विस और इंडस्ट्री यू कैन से, एंड दे आर कॉम्पीटिंग टूवर्ड्स लाइक उनका प्रोडक्ट सर्विस सेम होता है, एंड दे आर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर हु लाइक गेट द हायर, ये इसमें क्या बोलते हैं उसको, लाइक मोर प्रॉफिट वगैरह, दे आर फाइटिंग ओवर दैट थिंग। उनमें जैसे आप फॉर एग्जांपल एप्पल सैमसंग का देखिए, एप्पल का कॉम्पिटिटर सैमसंग है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज वगैरह है। बेसिकली दोनों के प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली डिफरेंस तो होती है, बट दे आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, दैट इज दे आर बोथ इन देयर डिजिटल लाइक मेकिंग मोबाइल फोन्स एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टफ। करेक्ट करेक्ट। अब स्पॉटिफाई के कॉम्पिटिटर्स हम बात कर रहे थे। दिव्यांशु सेड इट इज म्यूजिक, वाईटी म्यूजिक। ओके, दैट्स वेरी नाइस। व्हाट एल्स? व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स डू वी हैव? Amazon म्यूजिक हो गया, YouTube म्यूजिक ऑल्सो, परफेक्ट। गाना गाना हो यस, गया, यूट्यूब और म्यूजिक दिव्यांशु gave us. साउंड Okay. क्लाउड। Okay, guys, I think all of us are around the same age. तो हमने सबने वो अपने स्कूल में याद है वो songs.pk से जाके हम डाउनलोड करते थे। yes I remember। सबको याद होगा ना? pagal.com। कोई है Yes, मेरे साथ जो नॉट रिलेटेबल है इस चीज से? नो मैम। यस मैम। हम Perfect. दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो। बट आइडिया सेम था, राइट? आइडिया सेम था। ओके, यस मैम। क्या स्पॉटिफाई ने क्या करा? उस प्रोसेस को इजी कर दिया, yes करेक्ट? यस यस प्रोसेस Yes, को ma'am. पूरी तरीके से ओके। कोबिरुल हैज आल्सो रिस्पोंडेड वेरी गुड। आई रियली लाइक दैट यू गाइस आर रिस्पोंडिंग। सो इफ यू, उसने क्या करा स्पॉटिफाई ने? वो जो इतनी देर बैठ के डाउनलोड करने का था और वो सब कुछ था, वो सब इजी कर दिया, करेक्ट? सो व्हाट डिड दे डू? एक तो पहली बात, वो लोग डिजिटल गए। दैट मीन्स एक तो उन्होंने आपकी प्रोसेस को इजी कर दिया, प्लस ऑनलाइन कर दिया कि आपको अपने सिस्टम पे बैठ के डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। वो नहीं, वो अपने टाइम पे वो पीसी थे जो एकदम ऐसे वो एकदम yes बड़े बड़े सीपीयू के साथ नहीं बैठना है। यू कैन यू yes नो आप उसको ना आराम से बस अपने फोन पे फोन पे सुन सकते हो। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट डाउनलोड, राइट? अब हम लोग पहले थिएटर्स में जाते थे मूवी देखने, सीरियल्स देखते थे, ऑल दैट, ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड स्टफ, राइट? या बट Yes, ma'am. who made it easier? वो जियो चीज को सिनेमा। कितने- जियो सिनेमा, हॉटस्टार। OTT Amazon OTT platforms. Prime, OTT। Correct, Yeah. correct. OTT platforms was the right word. Who said it? Ma'am Shija. Very good. So OTT platforms is the right word. Now अभी भी आई थिंक आप लोग मूवीज देखने जाते होगे, बट मैक्सिमम टाइम आप लोग इन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स पे देते होगे, राइट? Yeah, ma'am। yes सो टू सी हमारे लाइफ में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, राइट? Yeah, yeah। अगर आप सुबह से लेके अपनी पूरी एक उसको देखोगे अपने लाइफस्टाइल को, राइट? पहले यू हैड टू गो टू रेस्टोरेंट्स टू ईट। yes अभी क्या करना है? Orders Zomato, online। Swiggy, स्विगी एंड जोमेटो yes का इंस्टाग्राम इज वर्ल्ड फेमस। आई थिंक एवरीबडी yeah नोज। यस so मैम। किसने sarcastic जोमेटो का इंस्टाग्राम देखा है? yes Yes, ma'am. I have seen Yes, Divyanshu, Zomato, Swiggy is the right answer. Okay, so everybody has seen Zomato का Instagram. वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो yes लोग अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट कर रहे हैं? No, ma'am. No, ma'am। अभी
कभी उन्होंने अपने पेज पे डाला हो कि भाई हमसे ले लो प्लीज, हमसे ले लो, या हमसे खाना मंगवा लो, एनी टाइम? नो मैम। एंड उनकी मेन टारगेट ऑडियंस कौन है? Always. Everyone, I ओके, करेक्ट। बट यंग वाले लोग ज्यादा हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स थोड़े से avoid स्पेक्टिकल हो करते हैं. जाते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो नाउ एक बात इससे हमको क्या समझ में आती है, व्हाई आई एम गिविंग दीज एग्जांपल्स। जब भी आप एक ब्रांड बनाने जाते हो या एक ब्रांड के लिए काम करने जाते हो, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपने सॉन्ग्स नहीं डाउनलोड करने अब, राइट? यस मैम। Yes. Easily ओटीटी ने आपकी accessible. क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, या मैं कहती हूँ बुक माई शो ने आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपको थिएटर तक चल के नहीं जाना कि लास्ट मिनट पे आप जा रहे हो या पहले आप जा रहे हो, कोई हिट मूवी है, एसआरके की कोई हिट मूवी है और उसकी ना टिकट सोल्ड आउट हो गई है, सो यू डोंट हैव टू गो 2 टाइम्स, राइट? एक ही बार वो हो जाता है। सो नंबर 1 पॉइंट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, you can write these down if you want, else obviously PPT तो I'll share in the next class. Number 1 point that you have to always and always know is what is the problem your brand is solving. Okay. Is it making sense? Yes, ma'am. Anybody has any Yes, problems? It's solving. Okay, so what is the problem that your brand is solving जानना क्यों जरूरी है? Because जब तक आपका ब्रांड कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तब तक आप लोग क्या उसको यूज करोगे? नो मैम। अगर मैम। जोमैटो आपको खाना नहीं लाके देता या बोलता कि बस हम तो ऑर्डर प्लेस करा देंगे, खुद से जाके ले आओ, यूज करते? नो मैम। No. अगर स्पॉटिफाई बोलता कि नहीं मैं तो ना बस इजी मैं अपने पास गाने रख लेता हूँ, मुझसे डाउनलोड कर लेना, लेकिन डाउनलोड तो तब भी करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई? No, नो ma'am. मैम। राइट? So you are, I think everybody is understanding where I'm trying to take you. Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। Perfect. Number 2 is you have to identify your competitors. आज हम सबको पता है Zomato का competitor कौन है? Swiggy. स्विगी। Very good. सबको पता है। अब सबको ये भी पता होगा कि Uber Eats भी आया था बीच में, Yes. यस पता मैम, फूड पांडा भी आया था। करेक्ट, बट सब Panda. फ्लॉप Yeah, हो right. गए, राइट? फ्लॉप क्यों हुए? बिकॉज वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जोमैटो और स्विगी के बराबर नहीं रख पाए। समझ में आया? सो यस मैम। एवरी सिंगल टाइम जब आप अपना एक ब्रांड बना रहे हो या अपना एक ब्रांड पे काम कर रहे हो, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता रखो। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं और उनके उस करने से आउटकम क्या है। इज इट मेकिंग सेंस गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। एम आई क्रिस्टल क्लियर? एक 1% का भी डाउट है ना, मुझे अभी बता दो। नेहा, ma'am. आई एम नॉट हियरिंग यू। इज एवरीथिंग अंडरस्टैंडेबल? Yes, ma'am. आर यू श्योर? Yes, मैं ma'am. इसमें पूछ लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई मुझे ये नहीं बोलेगा ना मुझे याद नहीं है? No, ma'am. सब चुप हो गए अब, और किसी ने नहीं बोला नेहा के अलावा? It's ओके, clear, Ma'am. ma'am. परफेक्ट। ओके, नंबर 3, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ना बिल्कुल ऐसे अपनी सर्विसेज को सामने ऑडियंस के ऊपर नहीं डाल रहे हो। जैसे हमने जोमैटो का एग्जांपल लिया, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने स्विगी के पेजेस भी देखे होंगे, Yes. Yes, ma'am. राइट? तो स्विगी भी जोमैटो जैसा ही कुछ कर रहा है, वो भी डायरेक्टली नहीं बोल रहा ना आओ मुझसे ले लो, मुझसे खाना मंगवा लो, राइट?
तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने ब्रांड के पेज को मीम पेज बना दे जोमेटो की तरह, राइट? बट Yes. इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने आप को प्रमोट नहीं करते जाएं. Number one thing in marketing is to be relatable. हमको रील्स देखना क्यों पसंद होता है? क्योंकि रील्स से हम रिलेट कर पाते हैं. जैसे कोई रील आई आजकल, देखा है बहुत सारे वो क्रिएटर्स बनाते हैं थिंग्स माय मॉम डज, देखी होगी किसी ने तो? Yes. Yes. Yes, देखी ma'am. है? तो वो रिलेटेबल लगती है ना, सबके साथ शेयर करते हो ना? Yes. यस Yes. मैम. Yes, ma'am. क्योंकि नेहा शायद आपको तो पता ही होगा, आप खुद भी वैसे करते होगे या किसी न किसी की मम्मियां वैसा करती होंगी, राइट? इसके Yes, लिए शेयर ma'am. करते हो. वो शेयर क्यों करते हो? क्योंकि वो रिलेटेबल है. ऐसे Yes. ही आज आपको अगर किसी भी ब्रांड का एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है या किसी ब्रांड से कोई अच्छी चीज आई है, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के मामले में अगर मैं बात करूं या शायद लड़कों के भी, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया, बहुत स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो बताओगे ना सबको जाकर कि यार तू भी ये मंगवा ले. एम आई Yes, राइट? जा राशि Yes, एवरीबडी, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ब्रांड जो है ना वो रिलेटेबल है, लोग उससे रिलेट कर पाए, लोग उसको समझ पाए. तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पता होने चाहिए, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होनी चाहिए ब्रांड की, एंड आपका ब्रांड चीजों लोगों से रिलेट करना चाहिए. जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको समझ में आना कि ये ब्रांड, मतलब वो रिलेट कर, उसको समझ पाए. जी, ma'am. इज इट मेकिंग सेंस गाइस? Yes, ma'am, it is. Yes, ma'am. परफेक्ट. नंबर 4, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके ब्रांड की एक टारगेट मार्केट होनी चाहिए. ठीक है? अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप मतलब ना आप उनको भी दे रहे हो, लेट्स से आप जेनजी को भी सर्व कर रहे हो, आप पेरेंट्स को भी कर रहे हो, क्योंकि जो कम्युनिकेशन जेनजी को सूट करेगा वो पेरेंट्स को नहीं करेगा, बट ऑब्वियस, Yes, ma'am. करेक्ट? तो Yes. इट इज Yes, वेरी ma'am. इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रांड के लिए एक ऑडियंस डिफाइन कर लो. ठीक है? अब हम कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करते हैं. जैसे हमने जोमेटो की बात करी, जोमेटो का टारगेट मार्केट कौन है? मैम मोस्टली हमारे एज ग्रुप के लाइक जेन जी वगैरह, यूथ करेक्ट, जिसको बोलेंगे, यंगस्टर्स. करेक्ट, Student, ma'am, student. करेक्ट, परफेक्ट. स्टूडेंट्स क्यों है? सबसे पहला उनका टारगेट है स्टूडेंट्स. क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स जो लोग बाहर रहते हैं, राइट, वो सबसे बड़ा टारगेट है, बिकॉज दे हैव टू चूज मुझे कहाँ से मंगवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऑल दैट स्टफ. एम आई मेकिंग सेंस? यस मैम, यू Yes, ma'am. अब ओके, तो हम लेट्स डू अ क्विक एक्टिविटी जहां पे आई विल गिव यू द ब्रांड नेम, एंड कोई भी एक जना मुझे जल्दी जल्दी से अपने अपने टर्न बाय टर्न लेना, एंड उसके टारगेट ऑडियंस बताना अपने अकॉर्डिंग, एंड अदर्स विल गेस कि ये सही है या नहीं है. इज इट ओके? या श्योर मैम. परफेक्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई कुछ बोल रहा था? ओके, I will try. I'll go first with Amazon. Everyone is using that, like Okay. every age group, because उस पे literally सब कुछ मिलता है for every age group, I guess. सब कुछ मिलता है, बट मेन वो लोग के एडवर्टीजमेंट्स किसको दिखाते हैं? मैम जेन जी और मैम Cornelius. मिड एज पीपल को. अभी शायद एक हाँ, प्राइम एड चलता है जिसमें वो हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए होते हैं, देखा है वो एड किसी ने? No. ओके, वी हैव एन एग्जांपल फ्रॉम वैभव. वैभव सेज मीशो. मीशो की टारगेट ऑडियंस क्या है? चलो बताओ. वुमेन्स. Woman. Women's. ओके, ओके, क्या कॉन्सेप्ट था मीशो का जब मीशो आया था? मैम डिस्काउंट में कपड़े सामान तो देना. प्राइसिंग था उनका मेन. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक सब मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करो. जब मीशो आया था तो वो Commissions का.
कमीशन बेस वो कुछ एग्जैक्टली किसी को याद आ रहा है जब मीशो आया था तो मीशो वॉज इंट्रोड्यूसिंग कि वुमेन घर बैठे बैठे अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, डायरेक्टली मीशो से सामान बेच सकती हैं। किसको ये कॉन्सेप्ट याद है? मैम थोड़ा थोड़ा सुना था उस बारे में, तब याद है। वो ज्यादातर लेडीज उसको व्हाट्सएप पे ज्यादा लगाती थी, व्हाट्सएप पे एक से एक प्रोडक्ट। Exactly. Here you go. That is the perfect answer I was looking for. जिन लोगों को नहीं पता है, लेफ्ट आउट मत फील करना, मैं बता देती हूँ, बट खुद से भी थोड़ा सा रिसर्च करोगे मिल जाएगा। तो मीशो जब स्टार्टिंग में आया था तो वो कैसा होता है वो देखा है, वो लेडीज लोग वो ग्रुप में उनके पास सामान आता है, ग्रुप से ही स्टेटस पे लगा देती हैं। Have you Yes. seen? तो वो तो है ना, वो क्या है कि वो क्या कर रहा था कि लोगों को ना ये बता रहा था कि भाई आप ना अपने घर पे बैठ कर ही ये काम कर सकते हो। ओके ओके, देन एनीबडी हैज एनी ब्रांड, अदर ब्रांड्स? कोई बताएगा? पीपल विल टेल। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो वर्क जो मीशो करा रहा था मैं, तो जैसे और भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब एफिलिएट को ऑप्शन देते, क्या ये सिस्टम भी यही कहलाएगा जो मीशो कराता है? यस एंड नो। अब ये हम देखेंगे जब हम एक एक ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे, बट ठीक है। फॉर नाउ आई विल टेल यू। ओके, वैभव हैज टू से नो टू समथिंग। वैभव किस चीज के लिए नॉट करेक्ट बोला है आपने? बैन मीशो का थोड़ा सा इसलिए भी रहता है, वो उनका जो टारगेट ऑडियंस रहता है वो हाई फैमिली नहीं रहती है, उनका रहता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को हिट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। उनको प्रोडक्ट बहुत थोड़े सस्ते होते हैं, तो उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास रहता है मैम, ताकि वो आसानी से प्रोडक्ट तक रीच कर सके। करेक्ट। इतनी देर से चुप क्यों हो आप? वाई नॉट स्पीकिंग? देखा अभी बोला तो कितना बढ़िया बोला। चलो ओके, एनीबडी हैज एनी अदर ब्रांड? कोई फेमस सा ब्रांड मत बताना, थोड़ा कम फेमस बताना। अजियो। परफेक्ट, बताओ गाइस। मिंत्रा सुना नहीं कभी। वो ये सब देते हैं, सिस्टम देते हैं क्या? अजियो, मिंत्रा, मुझे नहीं लगता। अच्छा चलो, आजियो थोड़ा सा कम हो गया। मिंत्रा बता दो। मिंत्रा तो सुना होगा ना? यस मिंत्रा मैम। बता, यस मैम। यस मैम। मिंत्रा बता दो। मिंत्रा की टारगेट ऑडियंस कौन है? मैम मैम मिंत्रा की बेसिकली टारगेटिंग फैशन कॉन्शियस मिडिल भी और ये भी। लाइक मुझे लगता है कॉलेज अपर गोइंग या फिर क्लास वर्किंग है वो, प्रोफेशनल क्योंकि जिनको उनके प्रोडक्ट फैशन थोड़ा में सा महंगे इंटरेस्ट। होते हैं। हाँ, बिकॉज दे आर टारगेटिंग, उनका वो एक अलग वो होता है ना ऐप में, वो लक्स वाला जहाँ पे लग्जरियस प्रोडक्ट्स भी वो लोग यस बेचते हैं। यस। सो दे आर टारगेटिंग मिडिल लेवल, मिडिल क्लास वाले भी एंड हायर लेवल टू। करेक्ट। ओके, और ओके, एनीबडी हैज एनीथिंग टू ऐड? नायका तो बहुत कॉमन है यार, यहाँ जितनी लड़कियां हैं ना मैं ही बता दूंगी नायका तो। नायका तो बहुत कॉमन है। नायका इज वेरी कॉमन। कुछ कुछ अच्छा बताओ, थोड़ा कम वाला। ओके, वील टेक द लास्ट ब्रांड एंड एक बार फिर वील डू द रिविजन। आई विल गिव यू guys, help me decide. अपने आसपास देखो, ब्रांड्स दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है। एप्पल। शॉप वही देखा था। शॉप्सी। शॉप्सी। शॉप्सी, हाँ यस, शॉप्सी, शॉप्सी। स्नैपडील। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। ओके, इससे एक और पॉइंट है। स्नैपडील का एक बहुत प्रॉब्लम हुआ था इंडिया में वो कुछ हाँ, वो वॉलमार्ट के साथ हो गया। नहीं, एक कंट्रोवर्सी ट्वीट थी जो उसके ओनर ने या सीईओ ने करी थी। किसको याद है? मैम नहीं याद है। नहीं Okay. याद नो है मैम। मैम। Now this वो is one. अच्छा, वो ब्रांड एम्बेसडर से शायद कुछ तो Exactly, नहीं होता। exactly. आमिर खान So, का कुछ मैटर था। you'll have to give me you know
you'll have to understand. स्नैपडील का कैसा था कि स्नैपडील के साथ ये हुआ था कि स्नैपडील ने जो है, स्नैपडील के उन्होंने ऐसा बोला था कि पीपल इन इंडिया आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड स्नैपडील प्रोडक्ट्स, ओके राइट। एंड उसके बाद से स्नैपडील के बहुत इश्यूज हुए थे। आई वुड लाइक एवरीबडी टू रीड अबाउट दिस, मेक योर Sure, नोट, ma'am. थर्सडे को वील डिस्कस अराउंड इट, ओके। Okay, ma'am. Okay. तो स्नैपडील का ये हुआ था, एंड इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है दैट वी नेवर 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 हैव टू डू एनीथिंग जो हमारे ब्रांड के अपोजिशन में जाए। Yes. इज दैट करेक्ट? डज दैट मेक ma'am. सेंस? समझ में आया? Yes, 5 ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ अ ब्रांड। सबसे पहला, आपको अपना प्रॉब्लम पता होना चाहिए, वो क्या सॉल्व कर रहा है। सेकंड, कॉम्पिटिटर्स पता होने चाहिए। थर्ड, रिलेटेबल करना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ओके। फोर्थ, कभी भी कुछ भी ऐसा मत होने देना ब्रांड के साथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, वेबसाइट की ब्रांड की बैड माउथ हो, ओके। एंड एक पॉइंट मैंने बताया था, बताओ क्या बताया था, किसको याद है? Target market. सॉरी, यस, टारगेट Target मार्केट। Market. टारगेट मार्केट कि हमको किसको सर्विस बेचनी है वो सबको पता होना चाहिए। Mm-hmm. इज दैट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट है? I'm not देख लो, फिर clear. मैं पूछूंगी तो बोलना मत मुझे कि उस दिन डाउट था और पूछना भूल गया। डरा नहीं रही हूँ यार, सिर्फ बता रही हूँ ऐसे, ओके। Okay, ma'am. फे मैंने गाइस, पांचों लिख लिए हैं। पांचों क्यों, उस दिन देख के बोलना है इसलिए? ओके ओके guys, I like to have a little feedback. कुछ भी you want me to improve in my next class, कुछ भी you would like me to focus, कहीं धीरे करना है कहीं फास्ट करना है तो मुझे बता दो, so I can do that in the next class, या सेम पेस पे ही चलना है? मैम आपका अच्छा। पेस परफेक्टली फाइन है, लेकिन अगर एक पीपीटी है तो बेटर रहेगा। भी देख लो in the आप next जो भी class. बता रहे हैं उससे एक हाँ, पीपीटी रहने आज से सिर्फ एक डेफिनेटिव सेशन था शीजा, सिर्फ जस्ट दैट्स इट। ये वाले पॉइंट्स अब हम नेक्स्ट में रिवाइज करेंगे। आई विल शेयर द पीपीटी आल्सो, एंड वी विल आल्सो सी थ्रू वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग। Okay, ma'am. थैंक यू। Okay, ma'am. और किसी को कोई भी फीडबैक है, प्लीज फीडबैक दे देना, और ऐसा मत बोलना कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, ठीक है? मतलब अभी फीडबैक दे दो इसलिए। Ma'am, good teacher. मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और नहीं, मतलब भी नहीं की अभी। Good. नहीं लगा कि आपके साथ ये पहला क्लास है, बहुत कंफर्टेबल लगा। दैट इज गुड, ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज सब लोग ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम सब वीडियो ऑन करेंगे सो दैट वी कैन चैट ऑल्सो एंड वी कैन टॉक ऑल्सो, ओके? Yeah, sure, ma'am. Yes. कुछ कोई भी प्रॉब्लम है एंड Okay. करें? Yes. मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम बोलो, बोलो। नेक्स्ट क्लास जो है हाँ, थर्सडे को 7 PM में ही होगा ना? यस करेक्ट, एब्सोल्युटली। वी विल Okay. स्टार्ट एट डॉट 7, सो थोड़ा सा ना 5 मिनट्स ज्यादा जल्दी ज्वाइन कर लेना, ओके? हेलो Okay, ma'am. मैम, हेलो Okay, ma'am. गो अहेड। यस हेलो मैम, आर यू लिसनिंग मैम? हाँ हाँ, सुन रही हूँ, बोलो। मैम आप टॉपिक वाइज करेंगे या फिर इट विल बी जनरलाइज, लाइक जो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक, एसईओ, गूगल एड, यस। फेसबुक, सो यू हैव टू डिसाइड विच टॉपिक इज द फर्स्ट वन मैम. I want to know which topic is going to be the first one. SEO would be the first topic. We will start.